تمثیل کا مقصد کیا تھا؟ پھر اس نے ان سے کہا کہ کیا تم یہ تمثیل نہیں سمجھے؟ پھر سب تمثیلوں کو کیوں کر سمجھو گے؟ 13ویں آیت ہمیں بتاتی ہے کہ خدا یسوع سے اپنے شاگردوں کو بتا رہا ہے کہ تم لوگ یہی تمثیل نہیں سمجھے، پھر سب تمثیلیں کیسے سمجھو گے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ تمثیل سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر باقی تمثیلیں سمجھنی ہے تو یہ تمثیل اگر سمجھ نہیں آئی تو باقی بھی سمجھ نہیں آئیں گی۔ یہ تمثیل سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آگے بڑھے۔ بونے والا کلام بوتا ہے، بونے والا کلام بوتا ہے جو راہ کے کنارے ہے، جہاں کلام بویا جاتا ہے۔ یہ وہ ہے کہ جب انہوں نے سنا تو شیطان فی الفار آ کر اس کلام کو جو ان میں بویا گیا تھا اٹھا لے گیا۔ خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ راہ کے کنارے جو بویا گیا، جب انہوں نے کلام کو سنا، یعنی کہ کلام کو سنا، شیطان آیا فی الفور اسے کلام کو ان میں سے جو بویا گیا تھا اٹھا کر لے گیا۔ اب میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، یہ سمجھنے والے کی بات ہے، کسان جب بیج بوئے گا تو وہ کس جگہ پہ بوئے گا؟ اچھی زمین پہ بوئے گا۔ پھر یہ راہ کے کنارے کیوں بو رہا ہے؟ جبکہ کسان کو پتہ ہے کہ راہ کے کنارے میں بوؤں گا تو وہ پھل نہیں لائے گا، پھر یہ راہ کے کنارے کیوں بویا گیا؟ کسان کی اگر وہ دیکھے، پہچان دیکھے، کسان کی پہچان یہ ہوتی ہے وہ پہلے زمین کو نرم کرتا ہے، پہلے زمین کو اچھا کرتا ہے، پھر بیج بوتا ہے، پھر بوتا ہے بیج۔ مگر یہاں پر زمین پتھری، یعنی کہ راہ کے کنارے بھی بیج بو دیا۔ اس کے آپ کو کیا سمجھ آ رہا ہے کہ راہ کے کنارے بو دیا؟ راہ کے کنارے اس لیے سمجھ آ رہا ہے کیونکہ لوگ پہلے تو یہ کہ شفا کے چکر میں ہیں، اس لیے وہاں جب انہوں نے تمثیل بیان کی تو لوگوں نے صرف سنا، لوگوں نے سن کے بعد میں وہ شفا کے ہی منتظر تھے، شفا ہی چاہتے تھے، لیکن انہوں نے کلام سنا، ان کی کوئی عقل میں نہیں بیٹھا ہوگا۔ بالکل صحیح۔ اس تمثیل کے بارے میں سیکھنے کے، کیونکہ اوپر ہم نے کیا کہا تھا، یہ تمثیل کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ راہ کے کنارے بونے کا مقصد کیا تھا؟ اس تمثیل کو ہم انجیل مقدس میں سے سیکھیں گے۔ راہ کے کنارے کون تھا؟ مقدس متی کی انجیل اس کا 20 باب اس کی 3 آیت ذرا پڑھے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ راہ کے کنارے بونے کا یسوع مسیح کا مقصد کیا تھا۔ حالانکہ کسان راہ کے کنارے کبھی بیج نہیں بوتا، مگر یہاں پر بویا گیا ہے، یہاں پر بویا گیا، اور یہاں پر بونے والا خود یسوع ہے اور کلام بھی یسوع ہے۔ اور یہ آپ اس بات کو سمجھنا کہ راہ کے کنارے کیوں بویا گیا۔ مقدس متی کی انجیل 20 باب اس کی 3 آیت یہاں پر لکھا ہے، میں پڑھ دیتا ہوں۔ یہاں پر لکھا ہے، پھر پیر دن چڑھے کے قریب نکل کر اس نے اوروں کو بازاروں میں بیکار کھڑے دیکھا۔ یعنی کہ وہ لوگ تھے جو کنارے پہ بیکار کھڑے ہوئے تھے۔ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میں راہ کے کنارے بھی بویا بیج، یعنی کہ جو راہ چلتے تھے، جو بیکار راہ کے کنارے بیٹھے تھے، دیکھو میں وہ بیج بونے ہیں، میں ایسا کسان ہوں، میں نے راہ کے کنارے بھی بو دیا، کیونکہ خداوند ہر ایک جان کی توبہ چاہتا ہے، وہ کسی جان کی ہلاکت سے خوش نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ عدالت کے وقت راہ کنارے خداوند یسوع مسیح کے بولے کہ میں تو راہ کے کنارے تھا، مجھے کسی نے کلام سنایا نہیں، تو خداوند یسوع مسیح کہے گا کہ راہ کے کنارے تو میں نے خود بیج بویا، اور تو نے اس بیج کو جڑ نہیں پکڑا، تو نے اس بیج کو اپنایا نہیں، تو نے اس بیج کو عمل نہیں کیا، اسی لیے شیطان آیا اور وہ لے گیا۔ اوپر لکھا ہے، اوپر تمثیل میں کیا لکھا تھا؟ ایک پرندہ تھا، وہ لے گیا۔ وہ پرندہ پتہ کون تھا؟ وہ شیطان تھا۔ اوپر جب تمثیل ہم نے پڑھی ہے، کیا لکھا تھا؟ اس کلام کو جو ان میں بویا گیا تھا اٹھا لے جاتا ہے۔ پہلی تمثیل جب تمثیل پڑھی 4 باب، وہ پرندے نے آ کر اسے چگ لیا، اور نیچے لکھا وہ پرندہ شیطان تھا، اس کی ڈیفینیشن نیچے ہوئی شیطان تھا۔ تو خود راہ کے کنارے بونے کا مقصد یہ تھا، جو راہ کے کنارے فارغ بیٹھے ہیں، خداوند یسوع مسیح نے ان کے آگے بھی اپنے کلام کو بو دیا، تاکہ خداوند یسوع مسیح چاہتے ہیں راہ کے کنارے والوں، تم بھی میری نجات کو سنو، تم بھی میرے کلام کو سنو اور رجوع لاؤ اور معافی پاؤ اور ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح ایک ایسا کلام تھا جو راہ کے کنارے بھی بویا گیا۔ دنیا کے یہ 4 طرح کی زمین میں بتاؤں گا یہ کیا تھی۔ یہ کروس تھا۔ خداوند یسوع مسیح سینٹر یروشلم کے سینٹر میں مرا، دنیا کا سینٹر ہے یروشلم، اور کروس 4 کونوں کو شو کرتی ہے، یہ 4 پرکار کی زمین کو شو کرتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح ایسا بیج تھا، خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ جب تک گیہوں کا دانہ مرتا نہیں وہ پھل نہیں لاتا۔ خداوند یسوع مسیح اپنی بات بتا رہے ہیں کہ
लोगों ने कबूल नहीं किया, राह के किनारे वालों ने कबूल नहीं किया। आगे बढ़े। और इसी तरह जो पथरीली ज़मीन में बोए गए, ये वो हैं जो कलाम को सुनकर बेउल्फार खुशी से कबूल कर लेते हैं और अपने अंदर जड़ नहीं रखते, बल्कि चंद रोज़ फिर जब कलाम के सबब से मुसीबत या जालिम बर्पा होता है, जुल्म बर्पा होता है, तो बेउल्फार ठोकर खाते हैं। ये दूसरी ज़मीन की बात करने लगा। ये ज़मीन है पथरीली ज़मीन, और इन्होंने भी क्या लिखा, कलाम को सुना और खुशी से कबूल भी किया। आज भी जब हम लोग कलाम सुनते हैं तो कहते हैं वाह 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 क्या कलाम है। थोड़ी देर के लिए हमें ऐसा लगता है, जब हमें कलाम की चोट लगती है, थोड़ी देर के लिए हम बोलते हैं वाह 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 कैसा कलाम है, बहुत अच्छा कलाम है, बहुत खुशी से कबूल करते हैं। मगर आगे लिखा, और जब कलाम के सबब से मुसीबत आती है, जुल्म बर्पा होता है, तो वो फिर वो ठोकर खाते हैं, खुशी से कबूल तो कर लेते हैं क्योंकि उनकी ज़मीन थी पथरीली। एक मैं आपको खुदा यूहन्ना की इंजील में एक जिक्र है, खुदा यीशु मसीह कहता है कि ये मेरा बदन खाने के लिए और ये मेरा खून पीने के लिए, और बहुत सारी भीड़ पीछे चली जाती है। वो कौन थे? वो पथरीली ज़मीन वाले थे। उन्होंने अपने दिल में खुदा यीशु मसीह का कलाम लिया ही नहीं था, वो शिफा के चक्रों में थे। कलाम कम सुनते थे, शिफा के चक्रों में ज़्यादा थे, इसलिए उनकी दिल की ज़मीन पथरीली रह गई। बीज ने वैसा जड़ पकड़ा ही नहीं उनकी दिलों में जैसा खुदा यीशु मसीह चाहता था। और जब यीशु कलाम के सबब से जब मुसीबत आई, जब उन्होंने ठोकर खाई। ऐसे ही माल की किताब में हनन्याह सफीरा के बारे में जिक्र है, उन्होंने भी ठोकर खाई थी। वो भी खुशी से खुदावन के पीछे चले थे, मगर उन्होंने भी ठोकर खाई थी। लिखा है उन दोनों मियाँ बीवी की जान चली गई क्योंकि उन्होंने खुदा के रूह से झूठ बोला था। वो दोनों हस्बैंड वाइफ वही मर गए थे। कलाम तो उन्होंने भी खुशी से कबूल किया था, वो चले भी। ऐसे ही मत्ती की अंजील उसका 24वां बाब है, जिक्र है खबरदार रहना, अच्छे बरगज़िदा जो गुमराह हो जाएंगे, जो अपने आप को कहते हैं कि हम खुशी से कलाम को कबूल करते हैं, यीशु के पीछे चलते हैं, मुसीबतें आएंगी, तंगियाँ आएंगी, और उस वक्त को ठोकर खा जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने पथरीली अपने दिल की ज़मीन को पथरीली रखा। उन्होंने अपने कवानीन, खुदावन के कवानीन अपने दिल पे लिखे ही नहीं। उन्होंने अपना दिल सख्त किया हुआ, वो ऊपर से खुदावन के कलाम सुन के चले जाते हैं। उन्होंने अपने खुदावन के कलाम को जगह ही नहीं दी, उस कदर जगह नहीं दी जिस तरह यीशु चाहता है कि तुम अपने दिल की ज़मीन को अच्छी ज़मीन बनाओ ताकि वह 100 गुना फल लाए। ये वो बात थी पथरीली ज़मीन वाली। आगे बढ़े भाई। और झाड़ियों में बोए गए और हैं, ये वो हैं जिन्होंने कलाम सुना और वो दुनिया की फिक्र और दौलत के फरेब और चीज़ों का लालच दाखिल होकर कलाम को दबा देते थे और वो बेफल रह जाता। यहाँ पर हम तीसरी ज़मीन के बारे में सीखने लगे। ये वो है जो झाड़ियों के किनारे बोया गया, झाड़ियों के किनारे बोया गया। फिर मैं कहता हूँ कि किसान को झाड़ियों में क्या बोने की बीज ज़रूरत थी, पथरीली ज़मीन में क्या बोलेगी, ताकि पथरीली ज़मीन वाले के भी गवाही हो। खुदा जब पथरीली ज़मीन वाला अदालत के बाद बोले कि मैंने तो तेरे कलाम को सुना नहीं, खुदा यीशु मसीह के अगर तू वो पथरीली ज़मीन से जितने मैं बोया सी बीज, मगर तुम अपने फिक्रा दी बात हो, जब कलाम दे मतलब तो ठोकर खा ली। ये 4 तरह के प्रकार, क्योंकि यीशु मसीह झील के किनारे बहुत सारी बीज थी, उसको स्कैन किया हुआ था, उनके दिलों को स्कैन किया। जब स्कैन किया खुदा यीशु मसीह को, अच्छा झाड़ियों वाली दिल, पथरीली ज़मीन वाला दिल, जब उसे स्कैन कर लिया तो उसी के मुताबिक तमसील को पेश किया। यह थी खुदावन यीशु मसीह की कुदरत, यह थी खुदावन यीशु मसीह का स्टाइल कलाम सुनाने का। और यहाँ पर लिखा झाड़ियों में जब बोया गया तो लोग झाड़ियों से, कोई लोग झाड़ियों से बच के बाहर आए। जब वो बाहर आ गए, झाड़ियों ने कलाम सुना और जब बाहर आ गए, मगर लिखा आगे फिर दुनिया की फिक्र और दौलतमंद। मुझे एक दौलतमंद की बात याद आ गई। खुदा यीशु मसीह के दौलतमंद खुदा यीशु मसीह के कहता मैं क्या करूँगा तेरे पीछे, चलो मैं नजात पाऊँ। तो खुदा यीशु मसीह कहता अपना माल दौलत बेच दे। तो वहाँ पर लिखा उस जवान का दिल गमगीन हो गया, उदास हो गया। वो खुदा यीशु मसीह के पीछे नहीं था चला, वो वापस चला गया अपने घर को, अपनी ज़िंदगी में वापस लौट गया। वो कौन था? उसने खुदा यीशु मसीह का कलाम तो सुना, झाड़ियों में से बाहर तो आया, खुदा यीशु ने बीज बोया, झाड़ियों में से बाहर आया, मगर उसने जब देखा कि दौलत, लालच, दुनिया की मेरी इतनी कोठरी है, मेरे इतने बंगले हैं, मैं क्या करूँगा, तो तब लिखा है
उस पे जो मुसीबत वो बेफल रह गया। अगर वो झाड़ियों में से निकला था तो उसको चाहिए था फिर मजबूती पकड़े रखना। वो दुनिया में लालच में दोबारा दाखिल हुआ, उसमें लालच दोबारा दाखिल हुई, वो बेफल रह गया। और याद रखूं, अदालत के वक्त यीशु मसीह एक ही बात पूछेगा। रुए ज़मीन में इंसान को भेजने का मकसद एक ही है। खुदावंद यीशु मसीह डायरेक्ट पूछेगा कि फल कहाँ है बेटा, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है अपनी जान वही बचाएगा जिसने किसी की जान बचाई हो, जिसने किसी के आगे अपने कलाम खुदावंद यीशु मसीह के कलाम को बोया हो, ये बीज बोया हो। तो याद रखें, खुदावंद यीशु मसीह एक ही बात बोलेगा फल का है, क्योंकि खुदावंद यीशु ने भी खुदा बाप के आगे फल पेश किया। कैसे पता चलता हमें? जब वो मुर्दों में से जी उठा तो लिखा कई मुकद्दसीन उसके साथ जी उठे और वो उसके फल थे। वो उसका जो उसने मुनादी की थी वो खुदावंद यीशु मसीह बता रहा था कि ये मेरे फल है, आप ये देख मैंने मुनादी की है। तो कैसी मुनादी की है? मैं मुर्दों को भी खींच जिंदा करके, मुकद्दसीनों को भी जिंदा करके ले आया। ऐसी मुनादी, ऐसी मुनादी। खुदावंद यीशु मसीह के बारे में अगर बताऊं तो 3.5 साल खुदावंद यीशु मसीह के अच्छे नहीं गुजरे। जब वो पैदा हुआ तो क्या फरौन बादशाह ने किया? बच्चों का कत्ल करवाना शुरू कर दिया। अंजीलों में कई जगह पे लिखा कि फकीर फरिश्ते उसके जान के दुश्मन बने रहे, हर वक्त उसकी जान की तलाश में थे, हर वक्त पत्थर उठाने के और पत्थर मारने की तलाश में थे, हर वक्त पत्थर मारना चाहते थे। खुदावंद यीशु मसीह ने 3.5 साल इस रुए ज़मीन पे इस जिस्म में ऐसे नहीं गुजारे, ऐसे नहीं हमने निजात पाई। बहुत सारा यीशु मसीह के ऊपर मुसीबतें घटी गई। यहाँ पे कलाम मुकद्दस में वैसा सुनहरे लिखा भी नहीं गया। मैं समझता हूँ जितना लिखा गया हमारे ईमान के मुताबिक बहुत है। खुदावंद यीशु मसीह के बारे में यशायाह का 53 बार पढ़े तो बहुत खुदावंद यीशु मसीह को ऐसा सताया गया, ऐसा मारा गया, ऐसा रोंदा गया। तो खुदावंद यीशु मसीह ने 3 साल ऐसे नहीं अपनी ज़िंदगी के ज़मीन में गुजारे। जी भाई आगे बढ़े, 20वीं आयत का मुतालिया करना जा रहे। 3 ज़मीनें हमने सीख चुके हैं, राह के किनारे वाली, पथरीली और झाड़ियों वाली। हाँ, ये चौथी ज़मीन के बारे में। और जो अच्छी ज़मीन में बोए गए ये वो है जो कलाम को सुनते और कबूल करते और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। ये अच्छी ज़मीन है। मैं बताता चला जाऊँ, ये अच्छी ज़मीन है। मगर अच्छी ज़मीन को चाहिए था 100 गुना फल लाना, मगर ये भी 60 ला रही है। कोई 60 ला रहा है, कोई 30 ला रहा है, यानी कि कोई 30, कोई 60, फिर 100। यानी कि खुदावंद यीशु मसीह बता रहे हैं कि जो अच्छी ज़मीन है, जो अपने आप को अच्छा कहते हैं, उनको भी बहुत मेहनत की करने की ज़रूरत है कि वह 100 गुना फल लाए। 100 गुना फल लाने वाले पता कौन थे? ये 12 चेले थे, 12 शागिर्द थे। इन्होंने अपना घर छोड़ दिया यीशु के लिए, इन्होंने अपनी माँ छोड़ दी यीशु के लिए, इन्होंने अपने घर बार, अपना दौलत, अपने घर बार, अपने कारोबार, मत्ती को आप जानते होंगे, उसने छोड़ दिया। मछेड़ों को जानते हुए उन्होंने छोड़ दिया। ये वो है जो 100 गुना फल लाए हैं। ये वो है जिनके मुनादी का वसीला से आज हम मसीह हैं। इन्होंने मुनादी की अपने घरों को छोड़ के। पौलुस रसूल कहता है मैं मुसीबतें उठाने में तुमसे सबसे ज़्यादा हूँ। मैं समुद्रों की मुसीबतों में ना, मैंने बैत खाए, मैंने मुक्के खाए, मैंने कोड़े खाए, मैं संसार किया गया, मैं भाइयों की मुसीबत में रहा, मैं मुसीबत में तुम सबसे ज़्यादा हूँ। ऐसे ही कलाम हम तक पहुँचा, ऐसे नहीं वो 100 गुना वाले गिने गए। वो खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि अच्छी ज़मीन तो है, मगर इसने भी क्या हो गया? 30 गुना आ रहा फल। यानी कि कुछ हिस्सा ऐसा है ज़मीन का जो 100 गुना फल दे सकती है। तो मैं आज चाहता हूँ, आज इस कलाम के वसीला से मैं चाहता हूँ कि आप ऐसी ज़मीन बन जाए, आप 30 नहीं, 60 नहीं, बल्कि 100 गुना की तैयारी करें। 100 गुना की तैयारी करेंगे तभी बचेंगे, क्योंकि बड़े बड़े जो बड़े बड़े ईमानदार है, बड़े बड़े जो अपने आप को रास्तबाज कहते हैं, मुकद्दस मत्ती की इंजील 24 बाब पढ़ ले। खुदावंद यीशु मसीह कहता है खबरदार तुम्हें कोई गुमराह न करे, खबरदार तुम्हें कोई गुमराह न करे। बहुत से मसीह खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि मैं हूँ वो मसीह जो आने वाला था। और ये मसीह कहाँ से खड़े होंगे? आप मसीह कहाँ किस जगह पे होते हैं? चर्चिस में मसीह खड़े होते हैं। और ये मसीह चर्चिस में खड़े होकर कहेंगे, गलत तालीम देंगे आपको। ये मसीह गैर कौम से नहीं आएगा, क्योंकि
गैर कौम वाला आपको मसीह बोलेगा नहीं। ये कहाँ से मसीह आपको बोला जाएगा? चर्चिस के अंदर ये बोला जाएगा मैं वो मसीह हूँ, मेरी तालीम पे अमल करो। तो बड़े बड़े रास्तबाज गुमराह हो जाएंगे। तो खुदा यीशु मसीह कहता है 100 गुना वाली तैयारी करो, 100 गुना वाली तैयारी। ये जो शागिर्द जो फरदौस में गए 12 कबीलों का इंसाफ करेंगे, पूरी दुनिया का खुदा यीशु मसीह के साथ खुदा बाप के साथ बैठ के 12 कबीलों का इंसाफ करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। इन्होंने अपनी जान दी है, शहादतें हैं, लिखी पड़ी हैं, मुकद्दस पत्थर तो उल्टी सलीम दी गई, किसी को जलते कड़ाहे में फेंका गया, मुकद्दस स्टिफनेस को संसार किया गया। ये वो है जो 100 गुना फल लाए। तो आज हमने सीखा 4 प्रकार की ज़मीन, 4 प्रकार की ज़मीन, यानी कि 4 कोने दुनिया के क्रूज, 4 कोने क्रूज। यहाँ पर कौन सा बीज बोया गया था? खुदावंद यीशु मसीह बोया गया था। अब कोई ये नहीं कह सकता कि मैं तो राह के किनारे था, मेरे आगे तो बोया नहीं। खुदावंद यीशु मसीह कहता है मरकज़ की किताब 4 बाब इसको निकाल के पढ़ाओ कि राह के किनारे वाले के आगे बोया गया था नहीं। कोई कहेगा खुदावंद मैं पथरीली ज़मीन वाला था, तो खुदावंद यीशु मसीह कहेगा मरकज़ की किताब 4 बाब की तमसील को बताओ कि पथरीली ज़मीन वाले आगे बीज बोया गया था कि नहीं। ऐसे झाड़ियों वाला पूछेगा मैं तो झाड़ियों में था, मैं तो मुश्किलों में, मुझे किसी ने कलाम नहीं सुनाया। तो खुदावंद यीशु मसीह कहेगा मुकद्दस मरकज़ से इंजील निकाल के उसको बताओ, ये अदालत की बात बता रहा हूँ। यानी कि कोई कह ही नहीं सकता कि मैंने तेरे कलाम को सुना ही नहीं। ये ऐसा बीज बोने यीशु मसीह आया था कि उन्होंने हर जगह पे बोल दिया। इसने राह का किनारा छोड़ा, ना झाड़ियाँ छोड़ी, ना पथरीली ज़मीन छोड़ी, ना अच्छी ज़मीन छोड़ी। यानी कि दुनिया का चारों कोनों में कलाम यीशु मसीह बो के गया। अब कोई कह नहीं सकता कि हमने कलाम नहीं सुना। तो मैं समझता हूँ मेरे भाइयों, आज हमें जो तैयारी करनी है 100 गुना तैयारी करनी है। 100 गुना वाली तैयारी करेंगे तो बचेंगे। 100 गुना वाला अपना ज़मीर, अपना दिल को बनाएंगे तो खुदावंद की बादशाही पर हम दाखिल हो पाएंगे। तो खुदावंद इस पाक कलाम के वसीला से आप सबको बरकत देंगे। आमीन।